Yes, welcome back to the discussion. We'll be now discussing with the fundamental concept of suit. What is suit? What are the essentials of suit? Who is a plaintiff? Who is a defendant? How can plaintiffs be joined? How can defendants be joined? What is a case of misjoinder? What is a case of non-joinder? So it's all about suit. Yes. Section 26 to 35B. Section 26 to 35B deals with suits and order 1 to 20 of first schedule deals with the procedure relating to suit. Okay. Now, the specific order which will be dealt today is order 1. Now, before coming to the core discussion of the topic, let us try to understand this meaning of suit. What is actually suit means? Now, suit is basically legal proceeding. Suit is basically a legal proceeding which is in the nature of judicial or quasi judicial, both, which is in the nature of judicial or quasi judicial. Right. Now, as per the Civil Procedure Code, suit is referred to as the civil proceeding. Right? Civil proceeding which is instituted by the presentation of plaint. Now, why I have defined this term suit? Because the term suit has not been defined under CPC in a comprehensive way. Now, we can directly say that a suit is basically a case, a proceeding. But if, suppose, take an example, if a question comes, what is a suit? Then you can say that it's a legal proceeding in a judicial or a quasi-judicial manner, which is instituted by the presentation of a plaint. Now, coming to the 4 essential elements of suit. Yes. What are the 4 essential elements of suit? The 4 essential elements of suit are, yes, in filing a suit, there should be parties to the suit. So, obviously, one party should be filing against the another. So, parties to the suit should involve what? Opposing parties. ये दिमाग में आपको रखना है, opposing parties. Now, the topic which you are dealing is parties to the suit. तो ये parties पहला essential होता है suit में. Next come subject matter of the suit. Yes, the second important point is that there should be a subject matter of the suit. Now, subject matter आप बोल सकते हो कुछ property लेके, but here the subject matter is actually referring to dispute. किसके लिए dispute है, किसके लिए suit file है, तो एक होना चाहिए ना. Next comes cause of action. This is the third important point. And last but not the least, there should be a relief sought by the plaintiff.
A suit is filed actually praying for a relief before the civil court. अभी सूट क्यों फाइल करते हो? कुछ तो रिलीफ मांग रहे हो कोर्ट से ना. प्रोसीडिंग्स किस लिए कर रहे हो? क्यों इतना खर्चा कर रहे हो? क्यों आप मामले में जा रहे हो? किसी का ऐसा मतलब कैजुअल थिंकिंग नहीं होता है कि कोर्ट में चला जाएगा डायरेक्टली. सो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ दिस रिलीफ. सो these are the four essential elements of suit. Now order 1 deals with the parties to the suit. This is the first essential. तो ये order 1 जो हम लोग डील कर रहे हैं, तो ये पॉइंट ही बोलते हैं order 1. That is order 1 deals with the parties to the suit. Now the suit should be presented by the plaintiff. Now what is a plaintiff? Still plaintiff is also not defined in the code. Plaintiff is considered to be a private memorial. Private memorial which is given to the court by the person who is filing, where he is stating a cause of action, where he is exhibiting that a wrong has been done to him. So a suit is generally commenced. A suit is generally filed by the presentation of a plaint. Now what is a plaint? Plaint is basically a private memorial. लिख लो प्राइवेट मेमोरियल विच इज रेंडर्ड टू द कोर्ट. आप प्लेंट कहां फाइल कर रहे हो? कोर्ट में. रेंडर्ड टू कोर्ट बाय प्लेंटिफ स्टेटिंग अ डिस्प्यूट एंड कॉज ऑफ एक्शन. तो कॉज ऑफ एक्शन एंड डिस्प्यूट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, in the plaintiff is sorting for what? Relief ही मांग रहा है. So plaint is a part of suit. Now suit is actually pleading. In pleading there are two types, that is plaint filed by the plaintiff and the written statement filed by the defendant, who is the opposing party. Okay, now stating the fact, what is joinder of plaintiffs? Coming to rule 1, joinder of plaintiffs. Joinder of plaintiffs. Yes, this is stated by order 1 rule 1. Order 1 rule 1 talks about joinder of plaintiffs. Rule 1 provides for joinder of plaintiffs. Now rule 1 का जो conditions है वो देख लेता हूं to fulfill. See, actually what rule 1 states? It states that all persons may be joined in one suit. All persons may be joined in one suit as plaintiffs if the following conditions are fulfilled. देखो, मान लो, सपोज टेक एन एग्जांपल, ए बी सी डी ई का एलिगेशंस एक्स वाई जेड का अगेंस्ट में है. सपोज टेक एन एग्जांपल, ए बी सी डी ये 4 व्यक्ति है जो एक्स वाई जेड का अगेंस्ट में केस किया है, और ए का भी एलिगेशंस, बी का भी एलिगेशंस, सी का भी एलिगेशंस, डी का भी एलिगेशंस आर कॉमन against XYZ. Now, if A brings a separate suit, B brings a separate suit, C brings a separate suit, D brings a separate suit, this would cause separate trial. This would cause delay of justice. This would cause multiple proceedings. So, why not to bring all the plaintiff in one case? Similarly, in case of defendant, if you file against X a separate suit, if you file the case against Y a separate suit, against Z a separate suit, then obviously there will be separate trials. Then again, that would cause delay in justice. That would make a huge cost also. That would harass the plaintiffs. So, what are the two conditions? The two conditions is, पहला conditions लिख लो थोड़ा. पहला conditions क्या है? The first condition is that the right to relief alleged to exist
in each plaintiff the right to relief alleged, राइट टू रिलीफ, कौन रिलीफ मांग रहा है? प्लेंटिफ्स मांग रहा है। तो जो राइट है तो वो राइट एग्जिस्ट कर रहा है किसका? सर एग्जिस्ट कर रहा है प्लेंटिफ्स के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। तो राइट टू रिलीफ alleged to exist in each plaintiff arises out of the same act और ट्रांजैक्शन। फर्स्ट पॉइंट ये है ट्रांजैक्शन। तो एक ही एक्ट का द्वारा, एक ही ट्रांजैक्शन का द्वारा आज ABCD XYZ अगेंस्ट में केस कर रहा है। एक ही ट्रांजैक्शन का द्वारा ABCD XYZ का अगेंस्ट में केस कर रहा है, क्योंकि कॉमन इशू है, मैटर कॉमन है और कॉमन रिलीफ मांग रहा है। सो व्हाई नॉट टू, हाँ ये भी हो सकता है, रिलीफ थोड़ा अलग हो सकता है, बट इशू एक है, एक्ट भी वही सेम है। सो इट्स बेटर इफ द प्लेंटिव्स in a common way file the case against XYZ, that would have a better deal. Otherwise that would lead each of the plaintiffs to file different cases against the defendant or the particular respective defendants. Next coming is number 2, that is the case is of such character that if such persons brought separate suits any common questions of law or fact would arise. तो बात क्या है? सेकेंड पॉइंट इज सेइंग दैट द केस इज ऑफ सच अ नेचर, तो केस का कैरेक्टर ऐसा है, क्या ABCD मान लो एक साथ वो फाइल नहीं करेगा तो क्या होगा? सेपरेट सूट्स हो जाएगा। अभी ABCD कॉमन ट्रांजैक्शन में कॉमन एक्ट का द्वारा XYZ का अगेंस्ट में केस कर रहा है, दैट वुड सेव टाइम फॉर ऑल द डिफेंडेंट्स, फॉर ऑल द प्लेंटिफ्स, दैट वुड सेव कॉस्ट फॉर ऑल द प्लेंटिफ्स, दैट वुड सेव टाइम फॉर गेटिंग जस्टिस। नहीं तो क्या होगा? अलग अलग A करेगा, अलग अलग B करेगा, अलग अलग C करेगा, दैट वुड लीड टू डिले इन जस्टिस। एंड द फैक्ट इज सेम, द इश्यूज आर सेम, द एक्ट इज सेम, द ट्रांजैक्शन इज ऑल्सो सेम। तो डिफेंडेंट प्लेंटिफ एक ही सूट में, मान लो एक प्लेंटिफ चार और प्लेंटिफ को भी कॉमन एक साथ ज्वाइन कर सकता है, एक ही सूट में उन लोग रिलीफ मांग सकता है। अलग अलग करेगा तो क्या होगा? फिर से वही सेक्शन 10 सेक्शन 11 लग जाएगा, रेस जुडिकाटा। क्या अलग अलग क्यों मामला करा है? हाँ सर हो सकता है आदमी डिफरेंट है, बट मान लो एक ही फैमिली में कोई दूसरा थर्ड पार्टी से ट्रांजैक्शन किया है। मान लो XYZ फादर सन एंड डॉटर, they have made a transaction with a third party, and a third party has made a breach of contract. तो अभी ये ब्रीच जो किया है, सन क्या अलग केस करेगा, फादर क्या अलग केस करेगा, डॉटर क्या अलग अलग केस करेगा? नो सर, that would lead delay in justice, that would lead a huge cost, what I am saying. So it's better if the plaintiff jointly file the suit against the defendants, because the case is of same character, and that would not lead to separate suits, because separate suits होगा तो separate trial भी होगा और question of law और fact would arise. ये आप CRPC में भी देखो, मान लो एक ही केस, sorry, second example, X has committed rape, X has committed murder, X has committed theft. अभी बात है क्या, मर्डर के लिए अलग चलेगा केस, थेफ्ट के लिए अलग केस चलेगा, तो बात क्या होगा? इट विल कॉज डिले इन ट्रायल ऑल्सो। अरे एक ही आदमी का अगेंस्ट में आप मामला कर रहे हो ना, तो कोर्ट कैन डू व्हाट? कोर्ट कैन जॉइंटली ट्राई ऑल द इश्यूज,
नॉट लाइक मर्डर के लिए अलग ट्रायल होगा, थेफ्ट के लिए अलग ट्रायल होगा, बिकॉज इफ दिस इज द थिंग देन व्हाट वुड हैपन, देयर वुड बी डिफीट ऑफ जस्टिस आल्सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इतना कोर्ट का टाइम नहीं है, कोर्ट इतना टाइम वेस्ट कभी नहीं करेगा। तो जो मान लो एक साथ हो सकता है, सपोज टेक एन एग्जांपल, कोर्ट ने ऐसा भी किया है, मान लो मेरे केस में एक्स ने मामला किया, मेरे केस में वाई ने मामला किया, दोनों का इशू एक है, ट्रांजैक्शन भी थोड़ा अलग था बट ट्रांजैक्शन कुछ हुआ था। अभी मान लो कोर्ट सुन रहा है क्या मेरे अगेंस्ट में केस, कोर्ट ने बोला क्या आपके अगेंस्ट में और एक दूसरा केस चल रहा है ना, एक काम करो दोनों का केस एक साथ कर दो, दोनों का केस एक साथ कर दो। इसमें क्या होगा, इसमें कोर्ट का भी टाइम सेव होगा। इसमें एक ट्रायल में होता है ना, जो एक पत्थर से आप दो पिजियन को मार रहे हो, तो वही होता है, आप एक पत्थर से दो काम कर रहे हो। तो कोर्ट भी कर सकते हैं कि जब भी एक ही केस दोनों अलग व्यक्ति एक ही मतलब पार्टी के अगेंस्ट में मामला किया, व्हाई नॉट टू जॉइन देम एज प्लेंटिफ। कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट का वो डिस्क्रिप्शन है, वो होता है सुओ मोटो। कभी कभी ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट करता है, एक हाई कोर्ट में केस चल रहा है, चलो हाई कोर्ट से केस उठा लिया, खुद मैटर को देख रहा है। तो बात वही है, इसमें क्या होगा, जस्टिस विल बी डिलीवर्ड फास्ट, देयर विल बी रिडक्शन इन डिले ऑफ टाइम ऑल्सो। बात कहने का मतलब आप लोग समझ लिया। नेक्स्ट कमिंग टू जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट्स, बात वही है, खाली क्या बोला, द राइट टू रिलीव, उसमें खाली लैंग्वेज इधर में कुछ चेंज है। एलिगेशंस कौन कर रहा है, प्लेंटिफ, एलिगेशंस कौन कर रहा है, प्लेंटिफ। इधर में क्या हुआ, द राइट टू रिलीव एलेज्ड टू एग्जिस्ट अगेंस्ट देम arises out of the same act and same transaction। सर ABCD वर्सेस XYZ, एक ही ट्रांजैक्शन में ABCD के साथ XYZ का कुछ तो डिस्प्यूट हुआ था। तो बात है क्या, XYZ के अलग अलग करके केस होगा, तो फिर से मैंने आपको बोला जो कहानी, तो इफ द रिलीफ सॉर्टेड, if the relief which is claimed by the plaintiff is coming out of the same course of transaction or same act, the right to relief alleged to exist against them arises out of the same act or transaction. The case is of such a nature that if separate suit are brought against such person, any common question of law, इधर में भी तो common question of law आ रहा है। अच्छा, इसका भी पैसा तुमने मारा, उसका भी पैसा तुमने मारा, उसका भी पैसा तुमने मारा। अच्छा एक बात, देखो एक काम करो, ये तीनों का केस एक साथ कर दो, प्लेंटिफ हो सकता है, व्हाई नॉट, और द प्लेंटिफ कैन आइदर जॉइंटली फाइल द केस। बात समझ में आया ना। सो जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट्स इज स्टेटेड इन ऑर्डर 1 रूल 3, सेम थिंग, खाली दोनों इस लाइन, खाली ये लाइन में चेंज है, वो एलिज टू एग्जिस्ट है और वो एलिज टू एग्जिस्ट इन ईच, इधर में जो इन ईच प्लेंटिफ बोला है और डिफेंडेंट का जगह में क्या लिखा है, अगेंस्ट द डिफेंडेंट, और कुछ नहीं, अगेंस्ट देम बोला है। इधर में प्लेंटिफ का क्लेम है, प्लेंटिफ एलिगेशंस कर रहा है, उधर में प्लेंटिफ एलिगेशंस किसका अगेंस्ट में कर रहा है, अगेंस्ट देम, अगेंस्ट द डिफेंडेंट्स। So if the allegations are common against all the defendants, if the allegations are common against all the defendants, भाई क्यों ना अलग अलग केस करोगे तुम, क्यों अलग अलग केस करोगे, एक ही मामला में मिटा, सब इसको मिटा दो। That's the point of joinder of defendants. Now coming to the next version, that is necessary and proper parties. आप मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनो, तभी आपको क्लैरिटी आएगा, और जो जो मैं लिख रहा हूं पॉइंट्स वो भी लिखते जाओ। इसमें क्या होगा, आप मेरा लेक्चर भी सुनोगे, कभी कभी पॉज भी करोगे, कभी कभी सुनोगे, इसमें आपका क्लैरिटी आ जाएगा। अदरवाइज मे बी सम स्टूडेंट्स विल नॉट गेट क्लैरिफिकेशन बाय लिसनिंग टू द लेक्चर एट ओनली वंस फॉर टाइम, यू हैव टू लिसन ट्वाइस और थ्राइस, देन ओनली यू कैन गेट अ क्लियर पिक्चर व्हाट आई एम सेइंग। नाउ कमिंग टू नेसेसरी एंड प्रॉपर पार्टीज। सर ये क्या होता है, नेसेसरी एंड प्रॉपर पार्टीज? देखो प्रॉपर पार्टी क्या है और नेसेसरी पार्टी क्या है। देखो नेसेसरी एंड प्रॉपर पार्टीज में क्या है, देखो एक डिस्टिंक्शन है। पहला नेसेसरी पार्टी में क्या बोल रहा है, विदाउट हुज प्रेजेंस द कोर्ट कैन नॉट पास अ डिक्री, द कोर्ट कैन नॉट पास अ ऑर्डर। नेसेसरी पार्टी को होना है। नेसेसरी पार्टी इज द पार्टी अगेंस्ट whom the relief is actually claimed before the court। जैसे मैं केस कर रहा हूं XYZ के अगेंस्ट में, तो इसमें XYZ आर नेसेसरी पार्टी, उसमें और एक पार्टी था उसका नाम है K, उसमें और एक पार्टी उसका नाम है K, बट वो पिक्चर में एकदम कुछ अच्छा रोल नहीं है। बात समझ में पहले देखो,
आप लोग जब हिंदी फिल्म में देखते हो, उसमें मान लो एक आप फिल्म देख रहे हो ऋतिक रोशन का, और वो जो नाम है आज का जो जैकी श्रॉफ का, टाइगर श्रॉफ का जो फिल्म था, ऋतिक और टाइगर श्रॉफ दोनों मिलकर जो फिल्म कर रहा है, तो वो दो है दोनों नेसेसरी पार्टी। बाकी का जो साइड रोल कर रहा है हम लोग उतना सोचते नहीं है, बट वो भी रोल कर रहा है, फिल्म इसलिए इतना अच्छा मजेदार होता है, वो प्रॉपर पार्टी है। ऐसे ही सोचो आप। तो नेसेसरी पार्टी क्या है? जिसके बिना आपका फिल्म नहीं जमेगा। कौन है वो पार्टी? ये टाइगर श्रॉफ वाला और ऋतिक रोशन वाला। बट जो साइड रोल्स है, अल्टीमेटली एक्चुअली इट गिव्स अ गुड पिक्चर। तो नेसेसरी पार्टी इज द पार्टी without whose presence the court cannot pass an order। तो उसको होना ही है, क्योंकि उसका अगेंस्ट में रिलीफ मांगा है प्लेंटिफ। तो जो XYZ है इस केस में वो नेसेसरी पार्टी है। बट व्हाट इज अ प्रॉपर पार्टी? अच्छा, प्रॉपर पार्टी, सपोज टेक एन एग्जाम्पल। मेरा प्रॉपर्टी, मेरा बात सुनो समझ जाओगे। मेरा प्रॉपर्टी मैंने एक्स को किराए में दिया, मैं लैंडलॉर्ड हूं, वो कौन है? वो टेनेंट है। हाँ सर, वो मेरे बात को वो मुझे छुपा के कोई दूसरा व्यक्ति को मेरे ही घर में फिर से किराए में दिया। तो बात क्या हुआ है? इट इज अ केस ऑफ टेनेंट एंड सब टेनेंट। इट्स अ केस ऑफ टेनेंट एंड सब टेनेंट। तो आई एम द लैंडलॉर्ड, ही इज द टेनेंट, एंड he himself has given or let out the property to some other third person without my consultation, without my previous approval। सर वो जो 3 नंबर पार्टी है वो कौन है? सर वो तो प्रॉपर पार्टी क्या नेसेसरी पार्टी? अभी मान लो, यस द स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। कौन गलती किया? सर टेनेंट ने गलती किया। आपको बिना पूछ के आपके ही घर में किसी को घुसा दिया। मान लो मुझे वो 10,000 देते हैं, किराए, और उससे वो लेते हैं 15,000। अरे वाह, क्या पिक्चर है! मुझे वो 10,000 दे रहा है, मैं मालिक हूं, और वो किसी दूसरे व्यक्ति को प्रॉपर्टी देके 15,000 ले रहा है। सर 15 10 माइनस करो, 5,000 प्रॉफिट ले रहा है। सर वो कैसा इनकम है? शुड आई evict the tenant? उसको उठाना पड़ेगा। हाँ, क्यों नहीं? बिकॉज सब टेनेंसी विदाउट द कंसल्टेशन एंड अप्रूवल is actually a gross violation of the West Bengal Premises Tenancy Act। आप नहीं दे सकते। तो the thing is that I am the landlord, he is the tenant and he is the subtenant। तो मान लो मैं जिस can you please close the door? तो मैंने जो केस फाइल किया एक्चुअली I have filed the case against the tenant, but नाउ हु इज इन पोजीशन? सर पोजीशन अभी सर कोई दूसरा व्यक्ति है जिसको टेनेंट ने फिर से किराए में दिया, तो वो प्रॉपर पार्टी बन गया। उसके बिना भी कोर्ट ऑर्डर दे सकता है, बट कोर्ट उसके बिना क्वेश्चंस जो इन्वॉल्व है सूट में वो डिसाइड नहीं कर सकता है, तो उसको रहना होगा। मेरा बात पहले से ध्यान से सुनो, व्हाट आई एम सेइंग। दोज हु आर बिहाइंड द लेंस आल्सो एंड दोज हु आर just watching me, please try to understand what I am saying. That will be much more interactive. Suppose take an example, if I am the landlord and X is the tenant, तो मैंने इसको किराए में दिया प्रॉपर्टी, इन्होंने फिर कोई दूसरा व्यक्ति को प्रॉपर्टी किराए में दिया। So who is doing the violation of the law? The tenant, because without my approval he has given further the letting out the property to some other person। I have filed a case। Now tell me who is the necessary party? Plaintiff, I am the necessary party, and ये भी necessary party है, क्योंकि रिलीफ किसके केस में मांग रहा हूं? टेनेंट के केस में मांग रहा हूं। बट एक प्रॉपर पार्टी जो है कौन है? वो जो सब टेनेंट है, जो थर्ड पार्टी को दिया है, तो वो तो केस में फंस गया। वो तो मुझे पहचानता नहीं है, वो किसको पहचानता है? टेनेंट को पहचानता है। मैं उसको बोल रहा हूं आप कौन हो भाई, मेरे प्रॉपर्टी में रह रहे हो? तो नेसेसरी पार्टी इस केस में कौन है? इसके बिना कोई डिक्री नहीं पास होगा, बट उसके बिना डिक्री पास हो सकता है। दैट इज प्रॉपर पार्टी का प्रॉपर पार्टी नहीं भी रहेगा तो डिक्री पास हो सकता है, बट प्रॉपर पार्टी को रहना होगा एट द टाइम ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चंस। नाउ कमिंग टू द एग्जांपल, व्हाट इज द नेसेसरी पार्टी? A necessary party is one whose presence is indispensable। तो जिसका प्रेजेंस इज इंडिस्पेंसेबल।
whose presence is indispensable, whose presence is indispensable, right? Indispensable to the constitution of the suit. तो जिसको सूट में आपने रखा मेन पार्टी, उसको तो रहना ही होगा कभी जब ऑर्डर डिक्री पास हो, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करना है, एक को सुनना है और एक को नहीं सुनना है, ऐसा तो कोर्ट नहीं कर सकता। तो जिसको सुनता है कोर्ट एक्चुअली नेसेसरी पार्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सूट, राइट टर्म। ओके, नेक्स्ट, अ प्रॉपर पार्टी इज वन without whom, proper party is one without whom an effective order, without whom an effective order cannot be passed, sorry, without whom an effective without whom an effective order can be passed, without whom an effective order can be passed, मतलब उसके बिना भी ऑर्डर पास हो सकता है, without whom an effective order be passed, but whose presence is required, but whose presence is required for a complete and final decision, so without whom an effective order can be passed, but whose presence is required for a complete and final decision of क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन जो कोर्ट डील कर रहा है, तो प्रॉपर पार्टी को मान लो इधर में चाहिए, प्रॉपर पार्टी कौन है कोर्ट देखना चाह रहे हैं, तो प्रॉपर पार्टी को नहीं देखेगा तो कोर्ट डिसाइड नहीं कर पाएगा क्या सच में क्या टेनेंट ने कोई दूसरा व्यक्ति को किराए में दिया था। सो इन दैट केस प्रॉपर पार्टी इज रिक्वायर्ड। और नेसेसरी पार्टी का और एक लास्ट पॉइंट है, नो डिक्री कैन बी पास्ड without his presence, no decree can be passed without his presence. Okay, thank you for the chapter of this necessary property. We will be coming to joinder and misjoinder of parties after some point of time. Yes, coming back to the discussion of joinder of parties, non-joinder of parties and misjoinder of parties. So joinder of parties has already been defined, joinder of plaintiffs, joinder of defendants. Now in the see, it has been given in order 1 rule 4, order 1 rule 4, this has to be considered. Order 1 rule 4 is about court may give judgment for or against one or more of joinder parties. अभी मान लो ABCD versus XYZ. ABCD is plaintiff and XYZ is defendant. अभी बात क्या है, ABCD जो एलिगेशंस दिया था XYZ, ट्रायल में पता चला क्या Z बिना कुछ नहीं करके भी उसको डिफेंडेंट कर दिया ABCD ने XYZ के अगेंस्ट में केस किया, बट आफ्टर ट्रायल देयर वाज अ डिस्कवरी बाय द कोर्ट दैट Z is not connected with this case. Z may be connected but has not done any wrong. Court can give judgment against XY and not Z. So court may give judgment for or against, खिलाफ में भी हो सकता है, फेवर में भी हो सकता है, फॉर और अगेंस्ट वन और मोर जॉइंट पार्टीज। तो एक का अगेंस्ट में मान लो कोर्ट ने अगेंस्ट में डिक्री दे दिया, एक का फेवर में भी दे सकता है, मान लो कुछ नहीं दिया है उसको, मतलब लाइबिलिटी नहीं किया है कोर्ट। सो इट हैज बीन सेइंग दैट जजमेंट में बी गिवन विदाउट एनी अमेंडमेंट, for such one or more of the plaintiffs as may be found to be entitled to relief, for such relief as he or may be entitled to. अभी ऐसा भी हो सकता है ABCD XYZ का अगेंस्ट में केस किया है और उसमें जो प्लेंटिफ नंबर 2 था बी इस केस से कोई संबंध ही नहीं है। बी ने ऐसा जानबूझ के बोला कि मेरा नाम भी इंक्लूड कर दो प्लेंटिफ में, बट B has no claim against XYZ.
तो ए सी डी का फेवर में मान लो डिक्री दे सकता है, बी को छोड़ दे सकता है, बी को बोल सकते हैं क्या यू आर नॉट अ कंसर्न पार्टी इन दिस केस। तो कोर्ट में गिव जजमेंट फॉर और अगेंस्ट, कोर्ट में गिव जजमेंट फॉर और अगेंस्ट one or more of joint parties. Right. Now coming to the discussion of non-joinder or misjoinder of parties. Non-joinder or misjoinder. Write down. This is mentioned in order 1 rule 9. देखो मैं इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को डील कर रहा हूं बिकॉज क्वेश्चंस इधर से ही बनता है ज्यादा। ऑर्डर 1 रूल 9, दिस इज टॉकिंग अबाउट non-joinder, non-joinder और misjoinder, non-joinder और misjoinder of parties, right? अभी non-joinder का क्या है केस? देखो एक केस ऐसा हो सकता है जिसमें एक पार्टी को सही में पार्टी बनाना चाहिए बट उसको पार्टी नहीं बनाया। नहीं समझ आया? मान लो ए बी वर्सेस एक्स वाई जेड। अभी इस केस में बी सही में पार्टी है बट सी भी बोल के एक कोई बंदा है जिसको पार्टी नहीं बनाया, तो उस पार्टी को इधर तो ज्वाइन कराना है ना। व्हाट इज दिस केस? दिस केस इज कॉल्ड नॉन जॉइंडर। आप मान लो ऐसा हो सकता है ना, कभी कभी पार्टीशन का टाइम में क्या होता है, मान लो दिस प्रॉपर्टी हैज 5 को शेयर, 1 2 3 1 2 3 4 और ये 5 कर देता हूं, 5 शेयर बनेगा, सही में 5 शेयर बनेगा। बट बात क्या है, ये जो 5 शेयर होगा मान लो ए बी सी डी ई का, अभी ई रहता है दिल्ली में और ये प्रॉपर्टी है आगरा में। तो ए बी सी डी इन्होंने कंस्पिरेसी करके इन लोग पहले से इंटेंशनली सोच के रखा कि ई को प्रॉपर्टी नहीं देना है, ई को भगा दो। तो उन्होंने मान लो सपोज टेक एन एग्जांपल पार्टीशन कर लिया और ई बाद में आके कोर्ट में केस करता है, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है मान लो ए बी सी डी, ए बी दोनों सी डी के अगेंस्ट में केस किया है बट ई को नहीं घुसाया केस में और ई को पता नहीं है, बट ई इज ऑल्सो वन ऑफ द को शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी। ई इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू गेट अ हाफ शेयर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, हाफ शेयर नहीं, इक्वल शेयर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। माई लैंग्वेज इज करेक्ट नाउ, इक्वल शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी। अभी इक्वल शेयर कितना होगा सर? सर सबको सर 1/5 शेयर मिलेगा, तो ई को भी 1/5 शेयर चाहिए सर, बट ई को इस केस में पार्टी नहीं बुलाया। अभी मान लो कोर्ट ऐसे डिस्कवरी करता है, नहीं तो कोई एप्लीकेशन करता है क्या और एक पार्टी चाहिए, नहीं तो ई को खुद मालूम हो गया क्या कुछ केस चल रहा है प्रॉपर्टी को लेके, ई खुद आ गया एप्लीकेशन कर डाला कोर्ट में क्या मुझे पार्टी बना दो, मुझे भी इस प्रॉपर्टी के ऊपर हिस्सा चाहिए। तो जब आपने सचमुच किसी को इंटेंशनली पार्टी नहीं बनाया बट उसको पार्टी बनाना चाहिए, और ऐसा भी हो सकता है जिसको पार्टी बनना नहीं था बट उसको अपने पार्टी बना दिया, दैट्स अ केस ऑफ मिसजॉइंडर। तो बात है क्या, व्हेन अ पर्सन हु इज अ नेसेसरी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, व्हेन अ पर्सन हु इज अ नेसेसरी और प्रॉपर, अ पर्सन हु इज अ नेसेसरी और प्रॉपर पार्टी टू अ सूट, when a person necessary or property at suit has not been joined, उसको पार्टी नहीं बनाया, दिस इज द केस ऑफ नॉन जॉइंडर। और मिस जॉइंडर का केस क्या है, आप जहां मतलब इंटेंशनली कोई मतलब नहीं बनता है, संबंध ही नहीं है, उसको पार्टी बना दिया केस में। अरे ये क्या है, आपने किसी को पार्टी बना दोगे और वो भी पार्टी में रहेगा, कोर्ट को मालूम है दैट पार्टी शुड बी स्ट्रक आउट, निकाल देगा। सो ऑर्डर 1 रूल 10 कहलाता है, वो अलग है, ये ऑर्डर 1 रूल 9 और उसके सब्सिक्वेंट ऑर्डर जो है ऑर्डर 1 रूल 10 इज टॉकिंग अबाउट एडिंग पार्टी। अभी देखो ये पार्टी जो पहले जिसको ज्वाइन नहीं किया था वो ई है, तो ई को अभी इस केस में मान लो इस केस में ई को अभी ज्वाइन किया, ई आ गया, ई इज वन ऑफ द प्लेंटिफ इन दिस केस, सपोज टेक एन एग्जांपल, ई इज वन ऑफ द प्लेंटिफ, तो ई को ज्वाइन करने से ई अभी केस में शामिल भी हो गए और पार्टीशन का शेयर भी मिलेगा। तो पहले ये क्या था, ई को ज्वाइन नहीं किया, दैट इट वाज अ केस ऑफ नॉन जॉइंडर। तो उसको ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन चाहिए, तो एप्लीकेशन सर कहां करना होगा,
एप्लीकेशन कहाँ करना होगा? ऑर्डर 1 रूल 10 में, ऑर्डर 1 रूल 10 में आपको एप्लीकेशन देना है। तो मान लो कोई भी ऐसा पार्टी जो सचमुच जिसको सही में प्रॉपर्टी को पार्टीशन करना होगा और वो जो ट्रस्टवर्दी है और कोर्ट को भी धोखा नहीं करना चाहता है, तो वो एप्लीकेशन कर सकता है। क्या मेरा एक बहन है जो दिल्ली में रहता है, हम लोग का केस चल रहा है आगरा में, तो दिल्ली में जो बैठा है उसको भी एक हिस्सा है, उसको भी सामान देके बुलाओ, उसको भी पार्टी कराओ। तो जो करेगा इसमें उसको कुछ अलग से कुछ फेवर नहीं मिलेगा, बट द थिंग इज दैट जिसको एक शेयर का हक मिलना था उसको तो मिल रहा है ना। सो दैट इज कॉल्ड। नहीं तो बाद में क्या होगा, आप लोग पार्टीशन कर लिया और अचानक ई आ गया बीच में और बोल रहा है क्या मुझे हिस्सा नहीं देने के लिए, मुझे हिस्सा देने के लिए, उन लोग का इंटेंशन था पहले से मुझे हिस्सा नहीं देगा, मुझे भी पार्टी बनाओ। तो क्या होगा? दैट्स इज अ केस ऑफ इंटेंशनली यू हैव not joined that particular party. He was a necessary party in that case. He was a necessary party in the case. तो उसको ज्वाइन करना था, मैं ज्वाइन नहीं किया है, और जिसको ज्वाइन नहीं करना उसको ज्वाइन करा दिया। तो दैट्स द केस। तो ये ऑर्डर 1 रूल 9 का टोटल इफेक्टिव किस में आता है? रूल 10 में। जो प्लेंटिव नहीं था उसको प्लेंटिव बना दिया, जिसके नाम पे सूट, व्हेन अ सूट हैज बीन फाइल्ड इन द नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिव। सॉरी, कम टू द नेक्स्ट पेज। देखो ये थोड़ा थ्योरी है और आपको मेरा लेक्चर सुनना है, क्लैरिटी तभी आएगा। ऑर्डर 1 रूल 10, इट्स अबाउट एडिंग, स्ट्राइकिंग, एडिंग, स्ट्राइकिंग, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टीज, सब्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टीज। मतलब क्या है इसका? मतलब सर यही है, जैसे आपने किसी पार्टी को पहले ज्वाइन नहीं किया था, बाद में उसको ऐड करा रहे हो, तो वो एडिंग हो गया। बट ऐड क्यों, कैसे कर रहे हो? इसके लिए भाई एप्लीकेशन देना होगा। क्या देना होगा? व्हाट आई सेड, एप्लीकेशन देना होगा। अंडर ऑर्डर 1 रूल 10 में एप्लीकेशन आपको देना होगा, तभी ऐड करा सकते हो। सर किसी पार्टी मतलब जानबूझ के उसको डाल दिया है, बट वो पार्टी नहीं है केस में, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, ही इज नॉट हैविंग एनी क्लेम इंटरेस्ट, उसको बाहर निकाल दो, तब स्ट्राइक। वो भी ऑर्डर 1 रूल 10 का हिसाब से ही होगा, आपको एप्लीकेशन देना होगा। सब्स्टिट्यूशन, सर कोई मर गया, मैं पार्टी था केस में बट मेरा मौत हो गया, बट मेरा तो बच्चा लड़का कोई तो है, उसको सब्स्टिट्यूट करोगे, वो भी ऑर्डर 1 रूल 10। तो ये पार्टी का एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, स्ट्राइकिंग, इसके साथ सब डील करता है। ओके, सो स्ट्राइकिंग आउट, एडिंग और सब्स्टिट्यूटिंग पार्टीज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसमें से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन बनता है। और एक लास्ट है वो ऑर्डर 1 रूल 8, इसमें भी क्वेश्चन एक बार आ गया जुडिशियल में, और ये वो है रिप्रेजेंटेटिव सूट। रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या है सर? रिप्रेजेंटेटिव सूट एक कंपनी है, जिस कंपनी में 500 एम्प्लॉय काम करता है, उस कंपनी में मैं डायरेक्टर हूँ। मेरे कंपनी के अगेंस्ट में कोई केस करना चाहता है तो सबको पार्टी बनाएगा क्या? नो सर, सबको पार्टी बनाएगा तो सबको अलग से समन दो, सबको अलग से बुलाओ, सबको नेसेसरी पार्टी बनाओ, तो आपका केस कम से कम महाभारत नहीं, उससे भी ज़्यादा कुछ होगा तो और भी ज़्यादा चलेगा। तो आप कंपनी को के पार्टी बनाओ और उसको डायरेक्टर को पार्टी बनाओ, हो सकता है। ओके, ये तो एक केस कंपनी को आपने डिफेंडेंट बना दिया, चलो। और एक केस कंपनी इधर प्लेंटिफ है, कंपनी किसी कंपनी के अगेंस्ट, क्या कंपनी कोई दूसरा कोई पार्टनरशिप फर्म का अगेंस्ट में, क्या कंपनी किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में केस करना चाहता है, तो कंपनी का सब एम्प्लॉय क्या केस करेगा उसके ऊपर? नहीं सर, कोई तो रिप्रेजेंट करेगा। कौन रिप्रेजेंट करेगा? मान लो डायरेक्टर कर रहा है, कंपनी कर रहा है, तो कंपनी का बिहाफ में कौन कर रहा है? कंपनी का एम्प्लॉय का बिहाफ में, कंपनी का बिहाफ में डायरेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग द सूट। तो ये रिप्रेजेंटेटिव सूट हो गया। ये रिप्रेजेंटेटिव सूट में जो भी डिक्री होता है ना, ऑल आर बाइंडिंग, इवन द एम्प्लॉयज, इवन एवरीवन इज बाइंडिंग, इवन एवरीवन इज बाइंडिंग। तो बाइंडिंग का मतलब क्या है? ऐसा भी हो सकता है, मान लो कोई एनजीओ, आप लोग ने एनजीओ एक खोला है, तो एनजीओ का कोई चेयरमैन होगा, हाँ क्या ना? एनजीओ का कोई चेयरमैन होगा, कोई प्रेसिडेंट होगा। आप सबके अगेंस्ट में अलग अलग करके केस करोगे तो लंबा चलेगा, वो नहीं होता है। आप एनजीओ को पार्टी बनाया और एनजीओ का मेन चेयरमैन को पार्टी बनाया, तो एनजीओ का चेयरमैन मान लो कोई डिक्री फेवर में पास हुआ है तो सबके ऊपर बाइंडिंग है, अगेंस्ट में भी हुआ तो सबके ऊपर बाइंडिंग है। तो वो ऑर्डर 1 रूल 8 का हिसाब से होता है। और आपने मान लो कभी ऐसा भी हो सकता है सर, कोई किसी का सेपरेट कुछ क्लेम है, मान लो इस कंपनी में कुछ एक दूसरा व्यक्ति को उस कंपनी का अंदर
मान लो एक कंपनी का अंदर बहुत सारा लोग है, उसमें कोई एम्प्लॉय का कोई सेपरेट क्लेम है, यस ही कैन प्रेजेंट एन एप्लीकेशन इन दैट सूट, क्या कंपनी ने केस का, इट्स ओके, बट मेरा भी एक सेपरेट क्लेम है, अलग से क्लेम है इसके अगेंस्ट में, कैन क्लेम. सो ऑर्डर 1 रूल 8 इज सेइंग, आई एम रीडिंग द लैंग्वेज, ट्राई टू अंडरस्टैंड. वेयर देयर आर न्यूमरस पर्सन्स, लैंग्वेज देखो, वेयर देयर आर न्यूमरस, सर कंपनी में न्यूमरस पर्सन होता है, having the same interest in the suit, one or more such persons may with the permission of the court sue or be sued or may defend the suit. sue भी कर सकता है, डिफेंड भी कर सकता है, डिफेंस भी ले सकता है. The court may direct that one of such more of such persons may sue, be sued or may defend such suit on behalf of for the benefit of all persons. सबके बेनिफिट में, सबके बिहाफ में एक आदमी लड़ सकता है. तो एक आदमी के अगेंस्ट में डिक्री दिया, उसका मतलब उसका खाली उसका अगेंस्ट में नहीं, सबके अगेंस्ट में उसको पकड़ जाएगा. आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस कंपनी, तो एनी जजमेंट, एनी ऑर्डर, एनी डिक्री अगेंस्ट द कंपनी विल प्रिटेंड टू बी अ डिक्री अगेंस्ट ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी. कंपनी के अगेंस्ट में खाली मैं रिप्रेजेंट किया, तो इसका मतलब नहीं है कि मेरा अगेंस्ट में खाली वो डिक्री एग्जीक्यूशन होगा, क्या डिक्री जाएगा, डिक्री सबके ऊपर बाइंडिंग है. That's about the representative suit. Thank you for giving time for listening patiently about this parties to suit. See you next time.